Okay, hello students. Uh, we are going to start the another passage in this period. Okay, in the first passage or in previous period, we understood that we discussed about that how the writer as well as his friend Hillary reach on the top. Okay, and how they write a statement with their sign and declare that there was no controversy or there was no relation with any controversy. Okay, we understood in last passage. Now we are going to start the new passage, that is page number 18. First thought. Okay, when as soon as the writer as well as his friend reached on the summit, then the first thought was in his mind. What was that? Look at this. Now, my first thought on reaching the top was a sense of gratitude to God. Okay, first of all, he is Indian, that's why. The top was a sense of gratitude to God, that after having failed 6 times. Okay, it means what does the line show? That the writer tried for 6 times. Writer had tried it for 6 times. 6 times उन्होंने ये ट्राई किया था टॉप पे पहुंचने का, लेकिन 6 टाइम वो फेल हुए थे। लेकिन उसके बाद फिर भी उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, उन्होंने फिर से प्रयास किया, फिर से ट्राई किया, और वो अब माउंटेन पे, वहाँ पे समिट पे पहुंच गए, टॉप पे पहुंच गए, सबसे ऊपर वो पहुंच गए। और इसलिए वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, ग्रेटिट्यूड टू गॉड, दैट आफ्टर हैविंग फेल्ड 6 टाइम्स ही हैड ब्लेस्ड मी विद फुलफिलमेंट ऑफ हिज डिजायर आई हैड हेल्ड सो लॉन्ग. Okay, it was his wish, it was his desire to reach on the top of the summit, and that's why when he reached on the top of the summit, then he express his gratitude to the god, because after failed for 6 times, at last he got his desire, he got his fulfillment, and that's why he was very thankful to God. I placed on the summit the offerings to God that I had carried with me. I had carried with me. Okay, when he reached on the top, he carried with him some offerings. Offerings means some things which he want to give to God or offer to God. I placed on summit the offerings to God that I had carried with me. This is in accord with it दिया है, in agreement with. Okay, this is in accord with my religion. ये my religion, it means आगे का सेंटेंस देखिए पहले. बोथ माई वाइफ एंड आई आर बुद्धिस्ट. द राइटर एंड हिज वाइफ were was Buddhist. They are Buddhist, and that's why according to their religion, they they offer some they offer some offerings to God after getting success. ओके okay, उनको जो सक्सेस मिला था उसके बदले ग्रैटिट्यूड बताने के लिए या ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने के लिए उन्होंने गॉड को ये ऑफर किया था, जो कि उनके धर्म के अनुसार सही था, या वो अपने धर्म के अनुसार वहाँ पे गॉड को ऑफरिंग्स ऑफर कर रहे थे. बोथ माई वाइफ एंड आई आर बुद्धिस्ट. नॉट ओनली the writer himself, but also he was also Buddhist. I could not kneel because of my clothes and equipment, but to offer to God, um, he could not kneel because of their clothes as well as the equipment which were with them. But I offered a silent prayer in my heart. ओके okay, नीचे बैठ के वो गॉड को प्रे नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो ऑफर किया, साइलेंट प्रेयर अपने मन में ही उन्होंने वो भगवान की प्रेयर की. आया समझ में कि वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने भगवान का ग्रेटिट्यूड बताया और उनको कुछ ऑफरिंग्स ऑफर किए. और अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, इट इज़ दे ऑफर सम offerings to God, and he could not kneel because of his clothes and equipments, but he offered his silent prayer in his heart. Okay, now I placed on the summit the offerings to God that I had carried with me. He put that offerings on that summit. In This is in accord with my religion. Both my wife and are
I are Buddhist. I could not kneel because of my clothes and equipment, but offered some silent pity. Okay, now some grammatical sentences are there. For example, I placed on this sentence. I placed on some offerings. क्या करना है आपको यहाँ पे आपको pick out the verb forms from the sentence and write its tense. आपको ये सेंटेंस में वर्ब कौन से आए वो निकालने हैं और उसके बाद उसके क्या लिखना है टेंस कौन से. जैसे प्लेस्ड इज वन वर्ब इन दिस सेंटेंस एज वेल एज had carried. Had carried is also another verb in this passage, in this line. That's why placed ed placed. तो ये क्या है सिंपल पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस लेकिन सिंपल पास्ट टेंस है. ओके और हैड कैरिड दिस इज ऑल्सो पास्ट टेंस बट इट इज द परफेक्ट पास्ट टेंस. परफेक्ट पास्ट टेंस यानी आपको एग्जाम में अगर पूछा गया कि पिक आउट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द लाइन एंड रीराइट इट्स टाइप्स तो आपको ऐसे लिखना है. ओके उसके बाद एक सेंटेंस है आई ऑफर्ड अ साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट. आई ऑफर्ड साइलेंट प्रेयर लास्ट सेंटेंस. ओके तो इसका आपको वॉइस करना है. तो वॉइस करते समय क्या करना है कि ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आई. यहाँ पे लास्ट सेंटेंस देखना आई यहाँ पे सब्जेक्ट है. ऑफर्ड वर्ब है और अ साइलेंट प्रेयर इज ऑब्जेक्ट एंड इट इज द प्रेडिकेशन. इन माई हार्ट इट इज द प्रेडिकेशन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ साइलेंट प्रेयर इट इज़ द सिंगुलर दैट्स वाई. और जो टेंस है सेंटेंस का वो पास्ट टेंस है इसलिए वॉज V3 लिखना है. ऑफर्ड का V3 ऑफर्ड ही है. ऑफर्ड अब आप या तो प्रेडिकेशन लिख सकते हैं या फिर लास्ट में भी लिख सकते हैं. इन माई हार्ट बाय मी सिंगुलर. ओके ये रहा इसका वॉइस. आया समझ में क्या किया. ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट then use the to be helping verb according to the tense of that sentence. After that we have to write the V3 any past participle of the subject and then by and S2 that is subject का second person लिखना है. Okay next passage. The offerings were biscuit, candy, and a little blue pencil. My youngest daughter Nima had given me a pencil before I left home. ओके ऑफरिंग्स में उन्होंने क्या दिया. ऑफरिंग्स में क्या क्या था बिस्किट कैंडी एंड लिटिल ब्लू पेंसिल थी. जो पेंसिल उनकी छोटी जो बेटी थी नीमा नाम की जो बेटी थी उसने उनको दी थी जब लेखक अपने घर से बाहर निकले थे या लेखक ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. और क्या कहा था सी आस्क्ड मी टू पुट इट on the top of the mountain as her offering. She give a blue pencil to his father, it means writer, and ask him to put it on the mountain when he reached on the mountain as her offering. उस माझ्या वतीने किंवा मेरी ओर से ये भगवान को दे देना अर्पण करना ये उसने बोला था. और इसलिए ऑफरिंग्स में उन्होंने बिस्किट्स रखी कैंडी रखी और साथ में लिटिल ब्लू पेंसिल भी रखी. तो यहाँ पे ये भी आ सकती है एक्टिविटी भी पूछ सकते हैं. ओके उसके बाद सेकंड पैसेज देखो. एज आई हैड ब्रिंग माई नाइस. एक सेकेंड हाँ इसके पहले का पैसेज. हाँ ordinary blue pencil not even a long one but it was one of her prized possession. Okay the blue pencil is not ordinary because it was her offerings to God and that's why it one of her prized possession. उसकी क्या थी वो prized possession थी खजीना था उसकी वो बहुत important पेंसिल थी जो उसने गॉड को ऑफर की थी. As I put it down, I pointed it out to Hillary. He gave me a big smile, showing that he understood. If he put down on the mountain, if he put down the pencil on mountain, he also looked at Hillary, and Hillary could understood his feelings, and that's why there was a big smile on his face when he put the pencil on the mountain. Okay. तो यहाँ पे भी आप एज सुन एज का यूज़ कर सकते हो. जैसे एज आई पुट इट डाउन आई पॉइंटेड इट आउट टू हिलरी. तो एज सुन एज यूज करना है तो एज निकालना है एज सुन एज लिखना है बाकी का सेंटेंस वैसे के वैसे. इसके बाद आप इसका नो सुनर देन भी यूज कर सकते हैं लेकिन नो सुनर और यहाँ पे पास्ट टेंस होने के कारण डू का डिड का वापर करना है यूज करना है. उसके बाद पूरा सेंटेंस लिखना है. जैसे नो सुनर डिड आई पुट इट डाउन देन
pointed it out to Hillary. Okay, fine. Then I got out the flags which I had on piece of the string about 4 feet long. I fastened one end to my ice axe and Hillary took pictures as I held it up. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, माउंटेन पे पहुंचने के बाद सबसे पहले उनके विचार जो थे कि उन्होंने भगवान से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किए। उसके बाद उन्होंने जो ऑफरिंग्स था वो वहाँ पे रखा। उसके बाद उनके पॉकेट में जो 4 फ्लैग्स थे वो निकाले और वहाँ पे उन्होंने वो फ्लैग्स लगाए, स्ट्रिंग के साथ लगाए। जो जो स्ट्रिंग की लंबाई कितनी थी, 4 फीट लॉन्ग थी। तो उन्होंने वो फास्टेंड वन एंड ऑफ हिज piece of the flag and with his ice axe and then Hillary took picture as he held it up. ओके, यहाँ पे भी आपको एज सुन एज मैंने बोला है करने के लिए। उसके बाद आगे का पैसेज, एज आई हैड टू ब्रिंग माई आइस एक्स डाउन विथ मी आई बरीड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द आइस ऑफ द ऑन द टॉप। ओके, उनको लेखक राइटर वांटेड टू ब्रिंग हिज आइस एक्स विथ हिम, रिटर्न विथ हिम, दैट्स व्हाई ही बरीड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द आइस एंड अनदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द स्लोप ऑफ द आइस। ओके, when we left they were lying flat against the summit. उसके बाद जब वो निकले, when we left they were lying, the flags, they were lying flat against the summit. वो जो फ्लैग्स है वो फ्लैटिंग करने लगे। तो यहाँ पे भी आपको एज सुन एज और नो सुनर देन का यूज करना है, एज सुन एज और नो सुनर देन। ओके, इसका यूज करना है कैसे, एज सुन एज वी लेफ्ट, बाकी का सेंटेंस वैसे के वैसे। नो सूनर डिड वी लिव, ये लेफ्ट चेंज होगा लिव में क्योंकि डिड हमने यूज किया इसलिए। देन दे वेयर लाइंग फ्लैट अगेंस्ट द समिट। ओके, उसके बाद I was very thirsty. I took out a water tumble for a drink, but found the water in the metal container has frozen, so I couldn't quench my thirst. Quench, satisfy one's thirst, यहाँ पे दिया है। तो he was very thirsty, that's why he took out his water bottle, but the bottle was metal, made up of metal, that's why the all water had frozen in that bottle, and that's why the writer could not quench his thirst। could not quench his thirst, use able to। अब आपको आता है तो आपको करना है able to का यूज करना है। I ate some biscuits and offered some to Hillary। यहाँ पे लेखक ने कुछ बिस्किट्स खाए, पानी तो नहीं पी सके क्योंकि वो फ्रोजन हो चुका था, तो कुछ बिस्किट्स खाए। उसके बाद वो उनको भी, मतलब उनके फ्रेंड्स को, हिलरी को भी उन्होंने ऑफर किया। I ate some biscuits and offered some to Hillary। I ate some biscuit and offered, यहाँ पे आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे। तो मैंने बोला था आपको कि दो वर्ड्स दैट में बी एडजेक्टिव और दैट में बी वर्ब एडजॉइनिंग किया जाता है एंड से। तो एंड के बाद जो वर्ड आता है वो देखना पहले, जहाँ यहाँ पे ऑफर्ड है, ऑफर्ड वर्ब है, तो आपको पहले सेंटेंस में कौन सा वर्ब है वो देखना है। तो कौन सा है यहाँ पे, एट, एट ए वर्ब है, तो आपको नॉट ओनली एट के पहले लगाना है। जैसे आई नॉट ओनली एट सम बिस्किट्स बट ऑल्सो ऑफर्ड सम टू हिलरी। ओके, but also offered some to Hillary. In this way, we understand, we discuss about this passage, and next passage we discuss what are the next thought. Okay.